Hello everyone, this is Danan sir and welcome to my online class. Once again, I am present with a new chapter of environmental study or environmental science. Chapter number 7, and the title of this chapter is Living and Non-Living Things. In Hindi, सजीव और निर्जीव वस्तुएं. In this chapter, we will try to know about living and non-living things, and in this chapter we will try to learn about the characteristics of living things. A new word came in this chapter, characteristics means what? Characteristics means some features of living things. How can we differentiate between living and non-living things? So we can differentiate between living things and non-living things on the basis of some characteristics. इन हिंदी लक्षण, किस लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सा वस्तु, कौन सी सामान, कौन सी चीज़ें जो हमारे पास है, दैट आर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग. तो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर नंबर 7. सो आई एम गोइंग टू रीड दिस चैप्टर and I am going to explain this chapter. Okay, so let's start. And some space given in your book, so you can write the separate column of living and non-living things which choose from the given pictures. Write their names in the correct columns. Now come to the page number 50. Learning ladder. Living things and non-living things. We know that our world is made up of both living and non-living things. We can see that around us there are two types of things. First, living things, and second, non-living things. First, we will talk about living things. What are living things? Living things means things which live and grow are called living things. It means क्या कि things which live, जो जीवित है, जो ग्रो करता है, बढ़ता है, that all things are called living things. For example, plants, animals, birds and human beings. These all are included in living things. Second things are non-living things. What are non-living things? Things which don't have life are called non-living things, such as chairs, tables and cars. Most non-living things are man-made. First, these two definition of living things and non-living things I want to explain in Hindi. It means living things वैसी चीज़ें जिसमें लाइफ हो, जो जीवित है, जो वृद्धि करता है, ग्रो करता है, बढ़ता है, दैट ऑल थिंग्स आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. उसे लिविंग थिंग्स कहते हैं. इन हिंदी सजीव. सजीव मतलब जिसमें जीवन हो, जो जीवन के साथ है, जो जिसमें जीवन है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस. दिज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स. वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव. निर्जीव मतलब जिसमें जान ना हो. वैसी चीज़ें जिसमें लाइफ ना हो, जिसमें जीवन ना हो, उसे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. जैसे chairs, tables, cars, whatever. The most of non-living things are man-made.
जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो मैन मेड है। कुछ चीज़ें नेचुरल भी है जो नॉन लिविंग थिंग्स में है। फॉर एग्जाम्पल मून, स्टार्स, सन, ये सारे जो है क्या, ये नेचुरल है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स से कैटेगरी में आते हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया। नाउ इन द second things is in page number 50, how are living things different from non-living things? But before this, I want to come back. In page number 49, you can see that a word came in this chapter, characteristics, characteristics. Characteristics means what? In Hindi, lakshan. How can we say that? How can we find that the things which we have, they are living things or non-living things? Because due to some characteristics, we can easily differentiate between that things which we have, they are living or non-living. Because living things show the some special characteristics differ from non-living things. So next thing is, how are living things different from non-living things? How can we say that? How can we differentiate between living things and non-living things? So some characteristics which show that the things are living. So simple characteristics are: all living things can grow, all living things can move, all living things can reproduce, all living things can breathe, all living things can change, like this. So these are some characteristics and on the basis of these all characteristics we can see that, and we can easily differentiate between living things and non-living things. So now we will learn about some characteristics of living things. First, according to your book, first characteristics of living thing is living things move. Move means motion, movement. In Hindi, चलना, गति करना, घूमना. All living things move on their own. हम लोग जितने भी हैं, हम लोग एक जगह स्थिर होकर नहीं, एक ही जगह कोई हम लोग को रख दिए तो हम लोग रहते हैं. हम लोग हर समय मूव करते रहते हैं. जितने भी लिविंग थिंग्स है मूव करते रहते हैं एक्सेप्ट प्लांट. प्लांट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स, बट प्लांट कांट मूव. प्लांट जो है मूव नहीं कर सकते, बट एक्सेप्ट प्लांट ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम हेयर टू देयर एंड फ्रॉम देयर टू हेयर. ऑल लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ऑन. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव. नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते. अगर चेयर है, टेबल है, बुक है, पेंसिल है, जो भी है, बेड है हम लोग का, जो जहाँ रखा हुआ वहीं रहता है. जब तक हम उसको अपने फोर्स अप्लाई करके, अपना ताकत अप्लाई करके ना उसको मूव करवाएं तो वो नहीं करेगा खुद से. हम लोग खुद से मूव करते हैं. एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्ब. एनिमल्स भी जो है हम लोगों की तरह जो है अपने फुट से, अपने लिम्ब से, अपने पैरों से, जो भी उनके चलने का, अपने मूवमेंट करने का जो भी उनके पास पार्ट है, बॉडी ऑर्गन है, उससे वो मूव करते हैं. नंबर 2, बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. जितने भी बर्ड्स हैं वो पंख की सहायता से वो मूव करते हैं. फ्लाई मतलब उड़ते हैं. उड़ना भी, पंछियों का उड़ना भी एक मूवमेंट ही है. सेकेंड, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट दे ग्रो एट अ फिक्स्ड स्पॉट. प्लांट मूव नहीं करते, लेकिन वो एक ही जगह, एक फिक्स स्थान पर रहकर, एक स्थिर स्थान पर रह के जो है क्या करते रहते हैं, वह ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं. अ फ्यू प्लांट्स possesses a very special feature. For example, the sunflower faces the sun or the leaves of the touch-me-not plant close when touched. पर कुछ प्लांट जो है एक
विशेष प्रकार के आकृति को रखते हैं, आकृति रखते हैं, फीचर्स को रखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन सी दैट फॉर एग्जाम्पल्स अ फ्यू प्लांट पोजेज अ वेरी स्पेशल फीचर्स। कुछ प्लांट में ऐसे स्पेशल लक्षण पाए जाते हैं, स्पेशल गुण होते हैं, फीचर्स को गुण भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से यू कैन सी दैट द सनफ्लावर फेसेस द सन, मतलब हम लोग देखते हैं सनफ्लावर को। सनफ्लावर क्या होता है कि जिधर जो है सूर्य का, जिधर सूर्य होता है उधर ही वो अपना उस फेस कर लेता है, उधर की ओर ही वो मुड़ जाता है। जिधर सूर्य का डायरेक्शन होता है उसी की तरफ वो है अपना फेस को बेंड कर लेता है। दूसरा होता है, आप लोगों ने प्लांट देखा है, इसको हम लोग बोलते हैं टच मी नॉट। इट मीन्स इन हिंदी शायद छुई मुई बोला जाता है, कहीं कहीं लोग उसको छुई मुई भी बोलते हैं, छुई मुई का पौधा। तो क्या होता है, तो जैसे ही हम लोग उसको टच करते हैं उसकी पत्तियां जो होती है वह बंद हो जाती है, सिकुड़ जाती है, अपने आप को कंप्रेस कर लेती है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स या कुछ ऐसे एनिमल्स या बर्ड्स भी हैं जो एक स्पेशल तरह का फीचर्स को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें ये गॉड गिफ्ट ही है, वह नेचुरली उसको मिला हुआ है। जो एक टच मी नॉट प्लांट है, इसमें जो आपके बुक में दिया हुआ है, एक्चुअली उसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका। टच मी प्लांट, ये मिमोसा पुडिका के लिप्स को जब हम लोग टच करते हैं तो यह सिकुड़ जाता है, यह अपने पत्तियों को बंद कर लेता है। तो ये कुछ ये स्पेशल फीचर्स ही है इस प्लांट का, टच मी नॉट का। नाउ कम टू द पेज नंबर 51। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ब्रीथ मतलब सांस लेना। प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन एयर। प्लांट और एनिमल जो है वह हवा में सांस लेते हैं, हम लोग खुली हवा में सांस लेते हैं ना। मोस्ट लिविंग बींग्स सच एज ह्यूमन बींग्स हैव नोज थ्रू विच दे ब्रीथ। इंसान मतलब हम लोग जो है वह नाक से ही सांस लेते हैं, नाक के द्वारा जो है हवा अंदर जाती है, नाक के द्वारा ही हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। मछलियाँ जो है वह, उसमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड द गिल्स, GILLS, प्रोनाउंसिएशन इज गिल्स। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। मछलियाँ जो है वह गिल्स के द्वारा सांस लेती है। तो मछली, हम लोग तो हवा में जो ऑक्सीजन उससे सांस लेते हैं, मछलियाँ पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है, पानी में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है उसी को सांस के रूप में वह लेती है। कैसे लेती है, तो थ्रू देयर गिल्स। गिल्स इज ए स्पेशल ऑर्गन विच फाउंड इन द फिश विच हेल्प देम थ्रू ब्रीथिंग प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स एंड इवन देयर स्किन। फ्रॉग्स भी जो है गिल्स और यहाँ तक कि स्किन से भी सांस लेते हैं, अपने स्किन त्वचा से भी सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द टाइनी होल्स ऑन देयर लिप्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स भी जो है वह एनिमल्स और ह्यूमंस की तरह ही सांस लेते हैं। अब सांस कैसे लेते हैं, तो प्लांट के लिप्स में, पत्तियों में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। पोर्स मीन्स होता है छेद, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टोमेटा। उसको स्टोमेटा बोलते हैं। उसी स्टोमेटा के द्वारा प्लांट्स जो है वह सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। किसके द्वारा, तो स्टोमेटा के द्वारा। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा इज ए टाइनी पोर्स फाउंड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द लीव्स। लीफ के ऊपरी सतहों पे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टोमेटा। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। Living things need food. We know that food is our basic need. Food and water. Food, water and air. But food, water and air, these all are basic need for us to survive. Without food and water, we can't survive, we can't live. So, all living things need food and water to grow and live. हम लोग जानते हैं कि भोजन और पानी, जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए
फूड और वाटर जरूरी है। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। अधिकतर माने मनुष्य जो है और अधिकतर एनिमल्स वह अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं और एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। मतलब इंसान अपने भोजन के लिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड रहते हैं। बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सोर्सेस ऑफ फूड फॉर ह्यूमन्स and some other animals also. We get maximum food item from animals and plants both. Plants make their own food with the help of air, water and sunlight, but plant is fully independent for food, for their food, because plant make their own food with the help of air, water and sunlight. हम लोग जानते हैं कि प्लांट अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। कैसे करते हैं? तो एक प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ऑल प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। एयर, वाटर और सनलाइट की मदद से प्लांट अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, अपना भोजन खुद तैयार करते हैं और अपना जिंदा रहने का उपाय खोज लेते हैं। हम ही लोग जो है अपने भोजन के लिए या तो प्लांट पे डिपेंड है या तो एनिमल पे डिपेंड। हम लोग को दोनों तरह से भोजन चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इट वाज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। सम सब टॉपिक्स is left, so I will explain some remaining subtopics of this chapter in next video. Today your task is, first all of you will read this chapter and do the underline of hard words which given in this chapter. Thank you. Bye bye.